everybody, very good morning to all of you and welcome to my session reading comprehension classes, right? So today's session is our first class for reading comprehension students. Reading comprehension is all about something, it is based on your reading, okay, and the question for reading comprehension has been asked in your examinations of banking, UPSC and SSC. Okay, so students, SSC and banking UPSC comprehensions are somewhere different, because in case of SSC examination you will have given some direct questions based on the comprehension or based on the passes, okay, but in case of UPSC and banking examinations you will have some indirect questions. That means you have to understand the statements very carefully, then after you will be able to answer all those questions, right? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे. सो रीडिंग मीन्स जस्ट सिंपल, दैट मीन्स टू रीड समथिंग, एंड व्हाट्स द मीन ऑफ कॉम्प्रिहेंड, एंड द मीन ऑफ कॉम्प्रिहेंड इज टू अंडरस्टैंड समथिंग, ओके, दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वॉट एवर यू हैव रिटन हियर, ओके. जो भी चीज़ आपको दी गई है, जो भी चीज़ आप रीड कर रहे हैं, दैट शुड बी अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट. आई होप दिस मीनिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी. Yes, now I come to the meaning. What is actually the reading comprehension? वही चीज़ है, बस मैं थोड़ा सा इसको comprehension को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए उसके बिहाफ में इस चीज़ की डेफिनेशन को इसको डिफाइन कर रही हूँ. Reading comprehension is the ability to apply the techniques of reading text, okay. That means reading को text को read करने की जो techniques होते हैं उन्हें apply करना कि how to read perfectly, how to read very carefully, okay, so that we can get an understanding, okay, we get a better understanding for this. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? रीड करना है. रीडिंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए. द सेकेंड वन यू हैव गिवन इज प्रोसेसिंग, ओके. इन केस ऑफ प्रोसेसिंग यू नीड टू फाइंड आउट सम फैक्ट्स, ओके. You need to find out some facts, you need to make some details or keywords for the particular passage, okay. So आपको कुछ facts और details निकालनी है, process करना है, उसे analyze करना है, right. Next, after you have given comprehending its meaning. Comprehending its meaning, that means whatever you are getting out, whatever details you are taking from there, okay, that should be very relevant, that should be understood, okay. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. जो भी आप रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो समझ में आना चाहिए. दैट इज कॉम्प्रिहेंडिंग, ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग आई कैन से, वॉट एवर विल यू डू, ओके, वॉट एवर यू विल डू, दैट शुड बी विद एक्यूरेसी, ओके. सो वॉट एवर यू विल डू दैट शुड बी इन एक्यूरेसी. एक्यूरेट होना चाहिए. आप जो भी करेंगे एक्यूरेसी के साथ करेंगे. इफ यू डोंट नो द मीन ऑफ द पैसेज, इफ यू डोंट गेट द मीन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट मीन्स इट्स बेटर टू लीव और इट्स बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम, ओके. आपको उसे अटैम्प्ट नहीं करना है, आप रॉन्ग नहीं करेंगे. इट्स माई पर्सनल सजेशन, यू विल नेवर रॉन्ग क्वेश्चन, ओके. नहीं आता तो उसे स्किप कर दे. Next, you have given within a limited frame of time you answer the given questions. That means you have to answer the questions within the specific time, okay, within the limited time frame, okay. ऐसा नहीं है कि आप एक पैसेज के पीछे हाफ एन आवर के लिए बैठ गए, आप एक पैसेज के लिए 15-20 मिनट्स लगाए. दैट वुड बी रॉन्ग, दैट वुड बी टोटली इररेलेवेंट, ओके. वो सही तरीका नहीं है एग्जाम को अटैम्प्ट करने का. तो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव गिवन सम टाइप्स ऑफ आरसी क्वेश्चंस कि किस तरह के आरसी के क्वेश्चंस गिवन होते हैं एक पैसेज में. I can say there are some questions related to main idea, theme based, a sense of the passage or thought of the author, okay. That means what is the central idea of the passage. Central idea का meaning समझ में आया आपको? main idea, that means passage is basically passage is about what, okay. किस चीज़ के बारे में पैसेज है, किस चीज़ के बारे में पूरी बात, पूरा पैसेज किसके अराउंड घूम रहा है, that topic is known as central idea. You can say main idea or your theme, okay. Next one you have given is tone based, okay. Tone based passage, tone based questions you will have given in the examination. Tone based का मतलब है कि in that particular passage will you provide some information. क्या आपको कुछ information provide की गई है, okay, या फिर उस पैसेज में आपको सजेशन दिया गया है, या फिर उस पैसेज में आपको कुछ कंप्लेनिंग पैसेज था, कुछ कंप्लेन से रिलेटेड था, या फिर पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, क्रिटिकल टोन है. दिस ऑल आर द टोन्स ऑफ पैसेज, ओके. एंड दिस टोन डिपेंड्स ऑन ऑथर्स बिहेवियर. दैट मीन्स ऑथर्स के इमोशंस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स कि ऑथर उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को बता रहे, बट किस तरह से, किस मैनर में, ओके. दैट इज टोन ऑफ द पैसेज, राइट.
identify the title of the passage. If you got to know the central idea of the passage, you will definitely got the mean or got the title of the particular passage. Next, you will have given, might be you will have given some questions based on inference. Okay, inference based questions have given some information that would be hidden. Okay, कुछ hidden information आपको दिया होगा, उस hidden information को आपको पढ़कर समझना है. तो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को हमेशा पढ़कर ही समझा जा सकता है. स्टूडेंट्स उसको पढ़ें, उसे अच्छे से समझें, एंड देन आफ्टर आप सोचें कि यस इस तरह की स्टेटमेंट हमें पैसेज में कुछ बोला गया था इसके बारे में, तो वहाँ से आपको आंसर फाइंड आउट करना है. अजम्पशंस आप बहुत अच्छे से जानते हो. अजम्पशन इज ऑलवेज मेड बिफोर बिफोर क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट. ओके, अजम्पशन हमेशा किसी स्टेटमेंट से पहले दी जाती है. समझ में आ गया सबको? अजम्पशन हमेशा कब दी जाएगी? स्टेटमेंट से पहले. कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, लाइक इफ आई हैव टेकन अ स्टेटमेंट दैट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस और स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, और यू कैन से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो बच्चों इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा गया है किसी वॉल पे कहीं पे भी ये पोस्टर लगा हुआ है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, व्हाट डज इट मीन? क्या सोचकर ये स्टेटमेंट बनाई गई होगी? हो सकता है वहाँ पे खड़े होकर लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, यस, या फिर हो सकता है स्मोक करने के बाद वहाँ पे सिगरेट्स के जो सिगरेट्स का जो रेस्ट पार्ट होता है उसे वहाँ पे फेंक देते हो. लॉट्स ऑफ थिंग्स और लॉट्स ऑफ अजम्पशंस आर देयर. ओके, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो नोटिस वहाँ पे लगाया गया. आर्ग्यूमेंट्स, यू नो दैट व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स? व्हेन एवर योर ओपिनियंस, ओके, पर्सन्स ओपिनियंस और पीपल ओपिनियन आर गेटिंग डिफरेंट. ओके, जब आर्ग्यूमेंट आपकी ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. दैट मीन्स वन पर्सन वुड बी अगेंस्ट टू द अदर. ओके, कॉन्टेक्चुअल वोकैब का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके कॉन्टेक्चुअल वोकैब पे बेस्ड होते हैं. लाइक इफ आई हैव गिवन अ स्टेटमेंट दैट व्हाट आर द ramifications, or I can say what are the consequences of the passage, right? What are the consequences, or I can say what are the repercussions? Okay, what are the repercussions of the passage? अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, आपने क्वेश्चन पढ़ा दैट्स फाइन, बट अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं मालूम है स्टूडेंट्स, देन हाउ विल यू थिंक दैट कि यू विल आंसर, यू कैन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? डेफिनेटली यू विल नॉट. ओके, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रेपरक्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है. ओके, तो ध्यान रखिएगा कि वोकैब जो है, वोकैब को आपको सबसे ज़्यादा वर्क वोकैब पे करना है, एंड देन आफ्टर रीडिंग पे करना है. आप डेली बेसिस पे कुछ रीड करें जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है. आपको इंग्लिश में कमांड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी कंफर्ट विद दिस लैंग्वेज. ओके, चलिए, नाउ आई हैव गिवन यू अ पैसेज, एंड दिस पैसेज वेरी सिंपल पैसेज गिवन हियर. ओके, इजीली समझ में आ जाएगा. मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लियरली. इन मे 1966, देखो हमें नोट्स बनाने हैं, हमें कीवर्ड्स बनाने हैं. ओके, कीवर्ड्स जरूरी है एक पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए. In May 1966, the World Health Organization was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. 1966 में के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज किया गया ताकि वो एक इनिशिएट करे, एक ग्लोबल कैंपेन चलाए इरेडिकेट करने के लिए. किसको इरेडिकेट करने के लिए? स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए. अब आपने पूछा कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट, द वाज द मीन ऑफ इरेडिकेट, दैट मीन्स रूट आउट करना. ओके, उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करना इज इरेडिकेट. ऑथराइज किसको किया गया? WHO को. ओके, ग्लोबल कैंपेन चला गया. टाइटल हमारा क्या निकल के आ रहा है कि इसको यहाँ से इरेडिकेट करना है स्मॉल पॉक्स को. इतना समझ में आ गया हमें. द गोल वॉज टू इरेडिकेट द डिसीज इन 1 decade. गोल क्या रखा गया? गोल ये रखा गया कि उस डिजीज को इरेडिकेट करना है कितने टाइमिंग में? विद इन अ डेकेड. ओके, 1 decade. ओके, 1 decade के अंदर आपको उसे इरेडिकेट करना. 1 decade मीन्स होता है अ बंच ऑफ 10 years. ओके, दैट्स कॉल्ड डेकेड. तो आई होप ये पॉइंट, ये कीवर्ड याद रहेगा आपको. ओके, नेक्स्ट यू हैव गिवन because similar projects for malaria and yellow fever had failed. क्योंकि इससे पहले ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स थे मलेरिया के, येलो फीवर के. ओके, येलो फीवर दैट मीन्स वो जॉन्डिस वगैरह जो हो जाता है. ओके, had failed, वो फेल्ड हो चुके थे. few believed that smallpox could actually be eradicated. ओके, कुछ लोगों ने बिलीव किया कि yes we can eradicate the smallpox. ओके, if we have this time limit, the 10 years time limit. ओके, गोल अगर हमने सेट किया तो yes we can do this. ओके, but 11 years after the initial ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कैंपेन चलाया था दैट मीन्स WHO ने, उसने कोई रिपोर्ट
कोई केस रिपोर्ट नहीं किया, दैट मीन्स नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया। ओके, तो इससे क्या समझ में आया कि येस हमने कंट्रोल कर लिया है। इतना जो हमें बताया गया है वो क्या है, 11 ईयर्स के बाद जो आउटकम निकल के आया वो क्या निकल के आया कि केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन आपको दी है आफ्टर 11 ईयर्स। नेक्स्ट यू हैव गिवन द स्ट्रेटजी वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन, यहाँ पे स्ट्रेटजी बताई गई है कि क्या स्ट्रेटजी रखी गई। ओके, तो स्ट्रेटजी केवल ये नहीं थी कि मास वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, यस ये स्ट्रेटजी थी, बट केवल ये स्ट्रेटजी नहीं थी, बट ऑल्सो टू आइसोलेट पेशेंट्स ओके विद द एक्टिव स्मॉल पॉक्स इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज एंड टू ब्रेक द चेन ऑफ द ह्यूमन ट्रांसमिशन। वेरी सिंपल स्टेटमेंट वी हैव गिवन स्टूडेंट्स, देयर आर 2 स्ट्रेटजीज जिसका डिस्कशन किया गया है इस पैसेज में। स्ट्रैटेजी केवल मास वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी ये भी थी कि पेशेंट्स को, जो एक्टिव स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट हैं उन्हें आइसोलेट किया जाए, उन्हें बाकियों से अलग किया जाए, ताकि वी कैन कंटेन द स्प्रेड ऑफ डिसीज, दैट मीन्स वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड वी कैन ब्रेक द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन। उस जो डिसीज फैलने की जो स्पीड जो है, जो चेन बनी हुई है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, उसको हम ब्रेक कर पाए। अगर हम आइसोलेटेड कर देंगे दैट मीन्स वो दूसरे पर्सन को नहीं फैलेगा, राइट। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोना एज वेल। रिवॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग smallpox assisted in motivating the public to aid health workers. Okay, rewards for reporting smallpox. Okay, ये जो smallpox को रिपोर्ट करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा ऐसा बोला गया। ओके, रिवॉर्डिंग की गई, और जिस चीज़ ने हेल्प किया लोगों को मोटिवेट करने में, दैट मीन्स पब्लिक को मोटिवेट किया कि वो हेल्थ वर्कर्स की हेल्प करें। एड का मतलब होता है बच्चों हेल्प। ओके, एड मीन्स हेल्प, राइट, कि वो हेल्थ वर्कर्स की हेल्प करेगी इस चीज़ में, केसेस को रिपोर्ट करने में, और जो रिपोर्ट करेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। ओके, ऐसा हुआ तो हमारी जो लोग मोटिवेट हुए और मोटिवेट होकर उन्होंने केसेस को रिपोर्ट करना स्टार्ट किया। 1 by 1 ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम वॉज सॉर्ट आउट। ओके, एक एक करके हर एक जो स्मॉल पॉक्स विक्टिम था, दैट मीन्स जो पेशेंट था, उसे सर्च कर लिया गया। ओके, सॉर्ट आउट का मीनिंग जो है स्टूडेंट्स, दैट इज टू सीक और टू सर्च, right? Sort out is the third form of seek. Okay, sort is the third form of seek. याद रहेगा, सर्च करना, फाइंड करना। उन्होंने क्या किया, हर एक पेशेंट को ढूंढ लिया गया, रिमूव फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर्स, उन्हें दूसरों के कॉन्टैक्ट से हटा दिया गया, एंड ट्रीटेड, और उन्हें ट्रीट किया गया, दैट मीन्स उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया। एट द सेम टाइम, दैट मीन्स साइमल्टेनियसली, उसी समय पर, द एंटायर विलेज वेयर द विक्टिम हैड लिव्ड was vaccinated। उसी समय जब हमें वो विक्टिम मिला तो पूरा गांव जहाँ पे वो विक्टिम रहता था, ओके, तो द एंटायर विलेज वेयर द विक्टिम हैड लिव्ड, जहाँ पे वो रहता था, was vaccinated, उस पूरे गांव को वैक्सीनेट किया गया, उस पूरे गांव को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज समवेयर अ कंक्लूजन। ओके, क्योंकि ये निष्कर्ष क्या निकल के आया आपका पूरे पैसेज का, कि अब जो स्मॉल पॉक्स है वो बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। और ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन के बाद अब डेथ्स नहीं होंगी, दैट मीन्स नो डेथ विल बी रिपोर्ट, और नो डेथ विल बी हैपन इन द वर्ल्ड। और ऐसा जब होने लगा कि डेथ्स होना बंद हो गई, तो दैट मीन्स रूटीन वैक्सीनेशंस हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड। तो जितनी भी रूटीन वैक्सीनेशंस थी उन्हें पूरे देश में क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। ओके, आई होप दिस पैसेज वेरी क्लियर टू एवरीवन। हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, लाइक गोल हमने निकाला, कीवर्ड रूट आउट करने का टाइटल हमारा था, फिर स्ट्रैटेजीज हमने बताई, गोल 10 ईयर्स का था, कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया आफ्टर 11 ईयर्स, राइट। So now I come to question number 1. I hope, I'm very sure that you will get understand the passage very clearly. Okay, the first question is, which of the following is the best title of the passage? टाइटल क्या है बच्चों, बेस्ट टाइटल क्या है पैसेज का? यू नो दैट हम पूरे पैसेज में बात स्मॉल पॉक्स को खत्म करने की हो रही थी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द रॉन्ग ऑप्शन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की केवल बात नहीं हुई है, ओके, आइसोलेट करने की लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर, बट केवल स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन कैन बी द टाइटल। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पैसेज। Infectious disease is totally wrong. The right option is eradication of smallpox. That means smallpox को कैसे eradicate किया जाए, उसे जड़ से कैसे खत्म किया जाए. This was the particular main idea of the passage. नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द गोल ऑफ, गोल देखो आपको मैंने बताया था ना, साइड में लिखा था गोल ऑफ द पैसेज क्या है। तो गोल ऑफ द पैसेज क्या था, उन्होंने 10 ईयर्स का गोल सेट किया था, और 10 ईयर्स में करना क्या था फाइनली, दैट मीन्स उन्हें इरेडिकेट करना था, दैट मीन्स इरेडिकेट द स्मॉल पॉक्स, राइट। I hope this is clear to everyone.
तो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने का गोल उन्होंने सेट किया था फॉर 10 ईयर्स। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टू डिक्रीज, उसकी स्प्रेड को डिक्रीज नहीं करना था, पूरा तरह से उसे खत्म करना था स्टूडेंट्स। टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, वर्ल्ड वाइड 10 ईयर्स में उन्हें खत्म करना था। टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, नो, केवल मास वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना वॉज नॉट द गोल, दिस वॉज अ स्ट्रेटजी टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन। एंड नाउ आई कम टू द फोर्थ ऑप्शन, टू इनिशिएट वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स फॉर स्मॉल पॉक्स, मलेरिया एंड फीवर, नो, इनिशिएट नहीं किया गया था एक ही टाइम पे तीनों के प्रोजेक्ट्स को। Next question is related to what was the strategy, okay, and we have discussed two strategies there. First one is to provide mass vaccinations, right, and the second strategy it was to isolate the patients of active smallpox. Yes, क्लियर टू एवरीवन? यस, सो वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर, पूरे गांव को वैक्सीनेट करने की बात नहीं हो रही है, बात की गई थी, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी। ओके, ट्रीटमेंट भी दिया गया था, बट दिस वाज नॉट द स्ट्रेटजी। ओके, एंड एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग ऑफ आउटब्रेक्स, एक्सटेंसिव रिपोर्ट हुए जो केसेस थे, येस, बट इट वाज नॉट द स्ट्रेटजी। ओके, स्ट्रेटजी क्या थी, लोगों को आइसोलेट किया जाए, अलग से रखा जाए बाकियों से, और उन्हें सबको मास वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द थर्ड वन ओनली। Okay, now come to the fourth question, and fourth question is 11 year after the initial organization of the campaign is what? Okay, कि 11 साल के बाद क्या हुआ? ओके, तो आप सबको पता है कि 11 साल के बाद कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, यस, हम जानते हैं। तो आप क्लास ऑप्शन से चलते हैं, मोर नंबर ऑफ पीपल हैड बीन विक्टिमाइज फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, कि मोर नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विक्टिमाइज हुए स्मॉल पॉक्स से। ये हमारा क्या नहीं था, 11 ईयर आफ्टर के बाद ये आउटकम नहीं निकल के आया था, नो। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज नहीं की थी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ने, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड नाउ यू हैव एन ऑप्शन फॉर ए एंड बी, बोथ आर कंक्लूजन्स, बट द प्रॉब्लम इज आपसे इसका कंक्लूजन पूछा, केवल फर्स्ट पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या निकल के आया था, हम पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ का कंक्लूजन ये था कि 11 ईयर्स के बाद कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया था। सो राइट आंसर इज द सेकंड वन ओनली, ओके, नॉट द फर्स्ट वन। इन्फेरेंस आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, इन्फेरेंस आप हमेशा पढ़ के समझ सकते हैं, राइट, दैट मीन्स इनडायरेक्ट, और आई कैन से हिडन मीनिंग। यस, आपको इन्फ्रेंस में हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं जो कि हिडन होंगे, उनका मीनिंग हिडन होता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं होती जो पैसेज में दी गई है। तो इन्फ्रेंस को आपको अज्यूम करना है, पढ़ के समझना है। लेट्स कम टू द वन बाय वन कम टू ऑप्शंस। स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड, येस इट वाज अ ट्रांसमिटेड डिजीज, बट वी कांट से इट इज नॉट ट्रांसमिटेड, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया फर्स्ट ऑप्शन, नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर। दिस ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, आफ्टर 11th ईयर की बात हो रही है वैसे भी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव गिवन मलेरिया एंड येलो फीवर हैव बीन एलिमिनेटेड, एलिमिनेट नहीं किया गया था, बच्चे फेल हो गए थे उसके प्रोजेक्ट में। सो राइट आंसर इज द थर्ड वन ओनली। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बट फिर भी पढ़ लेना चाहिए। स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स नो लॉन्गर डाई, ओके, स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स जो हैं वो अब उनकी डेथ नहीं होगी, वो अब नहीं मरेंगे, अगर वो उस बीमारी के कॉन्टेक्ट में आए तो भी नहीं मरेंगे, क्योंकि वी हैव प्रोवाइडेड द वैक्सीनेशन फॉर ऑल दोज विक्टिम्स, राइट। So students, this is all about the reading comprehension. If you got everything, so give me some response, and thank you very much for this video. Thank you. Thanks for watching this video.